Alright, guys, welcome to the session, and I hope all of you guys are doing good. So let's get started with today's session. So again, we'll solve two questions and we'll try to understand how we can solve step by step. So here the business problem which we have is the cheapest airline connection. JetGenie, a fast growing flight aggregator startup, is helping users find cost effective travel options for long distance trips. Many travelers want to save money, even if it means stopping once or twice. To enhance their search engine and provide the best deals, JetGenie needs to identify the cheapest trip options between cities, allowing up to 2 stops, but not more than that. The business problem here is what's the cheapest trip available between any origin and destination city, considering up to 2 connecting flights, maximum 2 stops. Here is the table which we have. Okay, before that, the product team wants to show best priced routes for user searches, build a recommendation system for alternative cheaper paths, highlight cost saving opportunities using hub airports. Here is the data set which we have, which is a flight table, which consists of ID of the flight, origin of the flight, destination of the flight, and cost of the flight as well, cost of the single flight, right? So now we'll try to understand this with step-by-step approach. Before that, I will just create the table as well. The main idea here is that I want to find out the cheapest option, and it can be a single flight option or it can be a multi-flight option, but maximum I can have 2 stops, right? That means up till 2 flight option, or I can say 2 stop option, I will go with, not more than that. So here is my data set, small, simple data. And I want to find out the best option out here. So what I'll do is I'll first, again, I'll basically solve this problem in the multiple steps, right? And we'll try to cover this entire solution in I'll break it into 3 steps and then I will combine these queries, right? That is the requirement. So let's start with the first step, which I want to solve. The first step, which I'm interested in, I look for the direct flights, right? So step 1 would be direct flights. That is 0 stops. So direct flight is nothing but I can directly get the origin destination cost. That is my direct flight. Basically, whatever data I have, right? So my query will be select origin, comma destination, comma cost as minimum price from flights, right? So here is my data set, which is exactly what data I have. This is like 0 stops because I'm going from San Francisco to JFK, this to this, direct, 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 and the corresponding prices. So that is a simple query where I'm only using the origin and destination and making it as a minimum price. Second step, which I will have is I am looking for those flights which are having 1 stop, right? 1 stop flights. That is, I'm going to have 2 flights. That is from A to B and from B to C, right? That is what I'm interested in.
For this, what I'll do, I'll write a query and then I will explain what it means and how it means. All those things we'll discuss. So select origin, comma destination, comma, or let me get the flights. From flights, let's say F1, inner join. I'm doing the self join F2 on F1 dot destination is equal to F2 dot origin, where F1 dot origin is not equal to F2 dot destination. Let me do one thing. Let me just select all the columns. Okay. Now let's try to understand this particular query. To understand this, I'll go back to Excel and I'll get this information in Excel. So this is the ID. This is the origin. This is destination. And this is the price. Right. So this is my data. Now I'll have this as one table and this as another table as well. This is my flight one table. And this is my flight two table. Now, if I come back to the query, what we have written, I'm joining the flights table again, like both are same data only. F1 dot destination is equal to F2 dot origin. And that makes sense, right? Suppose let's say मैं SFO से JFK गया. अब मुझे अगली फ्लाइट कहां से पकड़नी है? डेस्टिनेशन जो तुम्हारा इस टेबल का है वो ओरिजिन होना चाहिए इस टेबल के अंदर, राइट? So that is the condition here. Destination of the first flight should be the origin of the second flight. Are you guys understanding this condition, all of you? Right. Now, the second condition is where F1 dot origin is not equal to F2 dot destination. मतलब क्या? F1 dot origin, F1 का जो origin है वो F2 का destination नहीं होना चाहिए. वो बात भी सही है. अगर तुम सपोज यहां से गए यहां पर, अब तुम वापस यहां से वापस यहां आ जाओगे तो क्या फायदा? तुम तो वहीं वापस चले गए ना. ओरिजिन तुम्हारा डेस्टिनेशन अगर हो गया, मतलब कि तुम सपोज फॉर एग्जांपल कलकत्ता से चेन्नई गए, अब तुम चेन्नई से वापस कलकत्ता जाओगे तो क्या फायदा फिर, राइट? So that is what it is saying. Your origin should not be your destination in the second flight. Is this condition making sense? This where condition. Okay, simple. So now let me run this query and I am getting this information. So here you can see that I am getting 4 flights where my origin is SFO going to DFW, and from DFW I am going to MCO. SFO, DFW, DFW to JFK, DFW to MCO, MCO to JFK, SFO to MCO, MCO to JFK. Okay. But what all columns I am interested in? The columns which I want is the origin of the F1, right? F1 dot origin, comma F2 dot destination, right? F1 का origin और F2 का destination. So basically मेरी फ्लाइट SFO से DFW जाएगी और DFW से MCO जाएगी. So basically मुझे SFO से MCO जाना है. तो मेरा origin होगा SFO और मेरा destination होगा
MCO, SFO, JFK, DFW, JFK, SFO, DFK, right? JFK. So origin and destination. और प्राइस कितना होगा, प्राइस भी देना पड़ेगा मेरे को। तो F1 का जो कॉस्ट है उसको सम करूंगा मैं F2 के कॉस्ट के साथ, टोटल प्राइस। SFO से DFW की कॉस्ट 200 है और इससे यहाँ की कॉस्ट 100 है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 300 हुआ। सो आई विल ऐड अनदर कॉलम विच इज F1 डॉट कॉस्ट प्लस F2 डॉट कॉस्ट as my main price. Now when I run this, I'll get this part. Are you guys clear with this one stop flight, all of you? तो बेसिकली मैं SFO से MCO जा रहा हूं, बीच में एक स्टॉप होगा, टोटल कॉस्ट 300 रुपया, यहां से यहां डायरेक्ट जा रहा हूं, टोटल कॉस्ट इतना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब सपोज मैं इसको और ऊपर वाली क्वेरी को यूनियन कर दूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे वन स्टॉप वाली फ्लाइट भी मिल जाएगी और मुझे टू स्टॉप सॉरी जीरो स्टॉप वाली फ्लाइट भी मिल जाएगी और मुझे वन स्टॉप वाली फ्लाइट भी मिल जाएगी, राइट? वो हम लोग बाद में करेंगे। सो नाउ दैट वाज माय सेकंड step of this query where I am looking for the one stop flight. Now I will look for the two stop flights, right? So let's do that. Step 3, two stops flights. 3 flights where I am going from A to B and I am going from B to C, and then I am going from C to D. Okay. So first stop is your B, second stop is your C, and then you are reaching your destination. So this is the query which I have to write. So now what I will do, I will join this flight table again, third time. Right? Flight 1 joins with flight 2, joins with flight 3 with certain condition. So let's try to understand this. Let me go back to my Excel. This is my third flight I am coming in. This is my flight 3. ठीक है, अब सिंपल लॉजिक समझो. I want to go from this guy where this is my destination. Now this destination should be my origin, right? For example, SFO to I reach DFW. Now DFW is my origin. Now from DFW, I am going to MCO. Now MCO should be my origin, right? That means origin of this, destination of this, the destination of this joins with the origin of flight 2, and destination of this joins with the origin of flight 3. Plus your destination of your second flight should not be same as your origin of first flight. Same way, destination of third flight should not be same as origin of first flight. मुझे वापस अपने ओरिजिनल जगह नहीं जाना है. Plus destination of flight 3 should not be same as origin of flight 2, right? So that is the condition which I have to take care of. So let's try to understand this. How will I write the query? So select star from flights F1, inner join flights F2 on F1 dot destination is equal to F2 dot origin.
inner join flights F3 on F2 dot destination is equal to F3 dot origin. And F1 dot origin should not be equal to F2 dot destination and F1 dot origin should not be equal to F3 dot destination and F2 dot origin should not be equal to F3 dot destination. And then I want the price as well. So I'll go back to my original star. I want F1 dot origin column. मेरा main origin जो होगा F1 कॉलम का होगा और मेरा मेन डेस्टिनेशन कौन सा होगा F3 कॉलम का होगा F3 डॉट डेस्टिनेशन और मेरी प्राइस क्या होगी F1 डॉट कॉस्ट प्लस F2 डॉट कॉस्ट प्लस F3 डॉट कॉस्ट एज माय मेन प्राइस. एक ही फ्लाइट दिख रही है, चेक कर लेते हैं एक बार. लेट्स गो टू एक्सेल. So if you see here, the possible scenarios from flight 1 to flight 2 is what? SFO से JFK तो नहीं जा रहा है, तो ये फ्लाइट तो मेरी काम की नहीं है, राइट. SFO से DFW जा रहा है, हाँ जा रहा है, DFW का ओरिजिन है. ये मेरा JFK यहाँ पर ओरिजिन नहीं है, राइट. JFK से कोई ओरिजिन नहीं हो रही फ्लाइट. So this flight is valid. This flight is valid because MCO मेरा ओरिजिन भी है, MCO ओरिजिन है, ये दोनों ओरिजिन नहीं है, तो ये दोनों भी काम के नहीं है, राइट. तो ये 3 फ्लाइट काम की है मेरी. तो SFO से तुम DFW गए, अब तुम DFW से कहां कहां जा सकते हो, MCO जा सकते हो, JFK जा सकते हो, राइट. तो तुम यहां से MCO जा सकते हो या फिर JFK जा सकते हो. ये भी सेकंड फ्लाइट की बात चल रही है. दूसरा देख लो, SFO से MCO जा रहे हो. अब MCO से तुम कहां जा सकते हो, MCO से तुम सिर्फ JFK जा सकते हो. तो तुम MCO से JFK ही जा सकते हो. एंड तीसरी फ्लाइट DFW से जा रही है, तो DFW से तुम MCO जा सकते हो और MCO से तुम JFK ही जा सकते हो, राइट. अब JFK इज तुम्हारा ओरिजिन जो कि ओरिजिनल नहीं है, तो ये दो तो मेरे काम के नहीं है. इनफैक्ट ये भी काम का नहीं है. अब सिर्फ ये रूट बचता है, ये रूट बचता है. तो SFO से तुम DFW जा सकते हो और DFW से MCO जा सकते हो. अब तुम MCO से कहां जा सकते हो, MCO से तुम JFW जा सकते हो, तो JFK जा सकते हो, JFK वही ऑप्शन है बस. तो SFO से तुम्हारी JFK की फ्लाइट बनेगी जो कि मेरा सोर्स SFO होगा और JFK मेरा टारगेट होगा. और प्राइस कितना बैठेगा, SFO से DFW कितना है, 200 रुपए. DFW से MCO कितना है तुम्हारा, 100 रुपए. और MCO से JFK कितना है तुम्हारा, 100 रुपए, 400 रुपए. तो मतलब कि तुम्हारा आउटपुट क्या आना चाहिए, SFO से JFK 400 रुपए, 2 स्टॉप वाली फ्लाइट. वही आ रहा है, वही आ रहा है, परफेक्ट. Is that making sense, all of you? What's going on here? Now what is left? I just have to combine all these queries, right? अब मेरे पास बचा ही क्या है, यूनियन ऑल लगाना है. यूनियन ऑल लगा दो, काम खत्म. यूनियन ऑल, ये सेमीकोलन हटा हटा देंगे, ये सेमीकोलन हटा देंगे, यूनियन ऑल कर देंगे और ये सेमीकोलन हटा देंगे, राइट.
इन ऑल दिस क्वेरी एंड दिस क्वेरी। अब इसको तीनों को तुम कंबाइन कर लो, ये तुम्हारे सारे परमुटेशंस आ जाएंगे, राइट। तो अगर तुमको एसएफओ से जेएफ के जाना है, 500 रुपये लग रहे हैं। और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, एसएफओ से जेएफ 500, एसएफओ से जेएफ के 400 रुपये में भी पहुंचा जा रहा है। बट 400 रुपये में तुम तभी पहुंच पाओगे जब तुमको 2 स्टॉप लेना पड़ेगा, राइट। ओरिजिनल एसएफओ से जेएफ के तुम्हारा कितना बैठ रहा है, 500 रुपये बैठ रहा है। बट अगर तुम एसएफओ से जे डीएफडब्ल्यू जाओगे, और सॉरी एसएफओ से एमसीओ जाओगे, सॉरी डीएफडब्ल्यू जाओगे, एसएफओ से डीएफडब्ल्यू जाओगे, फिर एमसीओ से जेएफ के जा सकते हो, तो तुम्हारा ये कितना बैठेगा, 200 रुपये, 100 रुपये एंड 100 रुपये, 400 रुपये। तो ये तुमको यहाँ पे दिख रहा है। इफ आई वॉन्ट टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम एसएफओ से जेएफके, rather than giving me 500 rupees or dollars, I will go with $400. Right? तो ये मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। Okay? अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं मिनिमम प्राइस उठा लेता हूँ। ये सारा यूनियन कर दिया मैंने, मुझे मिनिमम प्राइस वाले ऑप्शन चाहिए, राइट। तो आई गो आउटसाइड दिस क्वेरी एंड आई कैन से सिलेक्ट origin कॉमा डेस्टिनेशन कॉमा मिनिमम ऑफ मिनिमम प्राइस फ्रॉम this entire TBL. ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा because we applied the aggregation, right? So we'll apply group by on destination and origin. Control C. Group by, order by, तो ये मुझे मिल गया, राइट। अब तुम्हारा एसएफओ से जेएफ के 400 वाले ऑप्शन आ रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर ऑप्शन ऑफ एसएफओ टू जेएफ के, राइट। So that is how we solve this problem statement. So I'm giving my end user an option to choose the cheapest trip available between the any origin or destination city, right. Here I've explained this entire steps, the entire queries are there. What is the use case? Identifies cheapest available trips between cities, not just direct flights. Cost effective routing options using popular hub cities. Detect travel patterns that can help negotiate better airline partnerships. Customer savings. Recommend cheaper alternatives to increase booking likelihood. Product intelligence. Use hub city insights to prioritize partnerships with cost effective carriers. Dynamic pricing engine. Build smart routing APIs for users and travel partners. Growth strategy, enterprise sensitive markets by showing budgeted conscious options. Right? So that is the business benefits I will get while solving this problem. Okay. So that is the first query which I wanted to discuss. Let's get into the second one. I'll share all these codes with you. Let's get into the second one. Let me get the data here. Here is a table, user events. Which consist of time, ID, user ID, customer ID, client ID, event and event ID, event type and event ID. Let's get into the problem statement. Currently, Communications Private Limited is a SaaS-based enterprise communication platform
similar to Slack, Zoom, or Microsoft Teams. It enables seamless messaging, file sharing, video calls, and collaboration tools across web and mobile devices. As part of its growth and engagement analysis, the product team wants to understand user behavior at a monthly level. The leadership team asks, how do we measure the ratio of new versus returning users on a monthly basis to evaluate user acquisition and retention performance? The key challenges are tracking the success of user acquisition campaigns, understanding user engagement and product stickiness, and identifying months where user churn or reactivation was high or low. Here is the table which I have, where we have the user events table, unique identifier for each platform activity record. Time ID is the timestamp of the event. User ID is unique identifier for each user. Customer ID is client organization / account associated with the user. Client ID is your type of device used. Event type is type of activity performed. And event ID is event category identifier. Again, we'll solve this problem statement in multiple steps. So first, let's get into the data and let's try to understand what we have. ID. What is the ID? Unique identifier for each platform activity record. मतलब कौन सा एक्टिविटी हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है, कौन से यूजर ने किया है, कस्टमर आईडी क्या है उसका, क्लाइंट क्या है, मतलब कहाँ मोबाइल पे किया है कि डेस्कटॉप पे किया है, इवेंट टाइप क्या है, मैसेज भेजा है या फाइल रिसीव किया है, वीडियो कॉल किया है, क्या किया है, सारा डिटेल है, और इवेंट आईडी है. राइट, इवेंट आईडी इज व्हाट? इवेंट कैटेगरी आइडेंटिफायर. इसी का आइडेंटिफायर होगा मेरे ख्याल से. फाइल सेंड मतलब आईडी नंबर 1, राइट. फाइल रिसीव मतलब आईडी नंबर 2, मैसेज सेंड इज आईडी नंबर 3. तो हर इवेंट का एक आईडी है, यूनिक आईडी. ओके, so that is my data here. So now what I will do is I'll solve this problem statement. Basically, I want to understand what my requirement is from the business. I want to find the ratio of new versus returning user. मुझे कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा लग रहा है, राइट. कुछ रेशियो निकालना पड़ेगा. That is the requirement. So let's go and let's check it out how we can do that, right? Let's try to solve this problem step by step. I will break this problem statement into smaller steps and I'll generate the final query. Mostly I'll break this into total 5 to 6 steps and we'll create this entire query. Okay. So let's start with the first part of this problem statement, where I will do what? I will do my step number 1. That is nothing but extract user ID and usage month. Right. Because you can see how do we measure the ratio of new versus existing users on monthly basis, right? So month मुझे निकालना पड़ेगा और user ID निकालना पड़ेगा, because मुझे जानना है कौन सा user वापस आ रहा है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, like that. So select user ID, comma date format. From the time ID, I want to fetch out the month and year, right, as usage month. From user events. तो अब यहाँ देखो तुम्हारा यूजर आईडी आ गया और उसका मंथ एंड ईयर आ गया कि कौन से ईयर में कौन से मंथ में क्या किया था. जैसे इसमें तुम देखोगे 2 बार आया हुआ है, 2 बार काम किया हुआ उसने, राइट. तो दैट इज द रीजन इट्स कमिंग ट्वाइस. So that is the first part where I'm extracting the user ID and the usage month. Now next what I will do is I will try to find the minimum user date. सबसे पहली बार कब आया, right? So my second step would be get the first month each user was seen, right, when he came for the very first time. Query almost same होगी,
थोड़ा बहुत माइनर चेंज करेंगे हम लोग, ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा एंड मिनिमम उठाना पड़ेगा. So I want to pick the minimum of this thing, right? And this will be my first scene month. First scene month. So as I am applying the minimum, that is the aggregation. So I will have to apply the group by also. Right. That's it. So when I run this, I will get the first time when he came in. Okay. So for every user, I will get the first time, first month, in which month he came in, which month of which year. ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखो 20 है, उसमें 150 आ रहे थे, ऊपर वाली क्वेरी में 150 आ रहे थे, right? Because I was getting all the users. But when I am finding the first date, you can see only 20 coming in because 20 users होंगे maximum. तो उनका first order date आ गया. You can check it out for confirmation. Select count of distinct of user ID from user event table. Right? तो यहाँ पे 20 आने चाहिए. तो there are 20 users which we have. ठीक है, तो ये काम सही लग रहा है. तो मेरे को सबकी मिनिमम ऑर्डर डेट आ गई और आई कैन से मिनिमम टाइम आईडी आ गई. लाइक पहली बार तुम कब आए. Now, once that is done, I will join the outcome of this and I will segregate them. Right. So let's create the third part of it, third part of this query, which is joining both the output, joining both to classify each row as new or existing. Right. अभी कैसे करेंगे? Let's try to understand. थोड़ी बड़ी क्वेरी होगी, थोड़ा छोटा करता हूँ उसको. Okay. So what I will do, I already found out this thing, right? Okay, let me write it from scratch. So select date format, time ID in, I want it in the year, month, right? As usage month, comma, user ID, comma, I'll apply the case statement. Case when. When what? When your, okay, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लिखना पड़ेगा. Give me a second. Let me get the first order date first. ये जो मेरी ऊपर वाली क्वेरी है उसको लेके चलते हैं. Let me get this, right? इसको उठाते हैं. Now in this query only, I'll join my main table again. So I will join select star from user events. Let's give this as E. Inner join this entire table. Right. Let's call it as first scene, FS. On E dot user ID is equal to FS dot user ID. ठीक है. अभी इसको स्टार नहीं चलाता हूँ, थोड़ा हम लोग लॉजिक बनाते हैं. So what I did, I got the first user date, which is this, and I'm joining that with main table, that is 150 records. अब जहां पर तुम्हारा डेट इक्वल टू फर्स्ट सीन डेट होगा, वो मेरा न्यू कस्टमर होगा, वरना एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा. इसको एक काम करता हूं मैं, प्रॉपर एक्सेल में समझाता हूं पहले, राइट, बिफोर आई गेट इनटू द होल स्टोरी. दिस इज माय ऑल 150 कस्टमर्स, 150 एंट्रीज. This is the user ID and this is the month year.
Okay. Now I will get my first this thing. First, पहली बार कब आए थे? That information. User ID and month year. ठीक है. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन करूंगा. कौन से कॉलम पे? यूजर आईडी कॉलम पे, बिकॉज दैट इज द कॉमन कॉलम. ठीक है. एंड मैं उन रिकॉर्ड्स को बोलूंगा कि मुझे फॉर एग्जांपल ये बंदा है या कोई दूसरा बंदा उठा है जहाँ पे दो रिकॉर्ड्स हो सेम टाइप के ना. ये देख, इसको हाईलाइट करते हैं. ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड दोनों सेम बंदे हैं. बोथ आर सेम ओनली. अब ये आया था, इसके पहले भी आया कि एक बार फिल्टर लगा के देखते हैं कि इसके और रिकॉर्ड्स तो नहीं है. कॉपी कर दें, Ctrl+C. तो देखो इसकी बहुत सारी एंट्रीज हैं. राइट. अब मेरा इंटरेस्ट क्या है? इसकी एंट्री इस टेबल में कहाँ है? 9 5 वाली की. ये रहा. This is the entry. Ctrl+B. Bold. So basically now what I will do, I will join this particular record with this particular record. But when this guy, which is the first order date, is equal to this guy again, जब भी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेट मैच हो रहा होगा, ये वाला रिकॉर्ड. राइट. ये सबसे पहली बार था, यहाँ पे भी था. So basically when I join this guy, my join will happen on this column and this column. But this guy has multiple entries. But when this month is equal to the same month, then it's a new, right? Because वो उसका पहली बार था. Right. It was the first time when he did some action or did some operation, right, on that platform. So whenever my dates are matching, in that case I will say my date of month here is matching with the first month here. तब वो न्यू माना जाएगा. और अगर अलग है तो वो ओल्ड माना जाएगा, एग्जिस्टिंग माना जाएगा. राइट. सपोज दोबारा 4th को किया है, अप्रैल को किया है, बट वो ऑलरेडी आ चुका है सब फरवरी में. सो इन दैट केस if I join this and this, and if this record coming in, I will say it's an existing user. It's not a new user anymore, right? So that is what the query I will have to write. So let's do that. तो यहाँ पर हम लोग उसका लॉजिक बनाएंगे. So I'll say date format e dot time id I'll get the year month as usage month, comma e dot user id case when date format e dot time id comma year month is equal to
fs dot first seen date, first seen month. What name I gave? First seen month, right? fs से उठा रहा हूं मैं, तो first seen month. Then you are new. Else you are existing. And as user type, right? As user type. Rest all I think it is fine. And now when I run this query, you can see output is coming in. ये देखो यहाँ पे उसी बंदे को उठाते हैं 9 3 वाले को, ये रहा। दो बार न्यू क्यों आ रहा है? बिकॉज उसकी दो एंट्री थी, दो की। दैट इज ओके, दैट इज फाइन, मिनिमम ऑर्डर डेट ही हो। तो न्यू न्यू और बाकी की सारी एंट्री एग्जिस्टिंग हो रही है बिकॉज इट इज आफ्टर February, right? So I am classifying my user based on when it came for the very first time. Is this query making sense, all of you? What we have done here, this entire query. As of now, I just classified, right? सबसे पहली बार जब आया उसको मैंने न्यू का टैग कर दिया और बाद में मैंने उसको दोबारा अगर लॉगिन किया तो उसको मैंने एग्जिस्टिंग का टैग कर दिया। Are you guys getting it? Yes, no, maybe, maybe not. Yes, but little bit re-explanation would help. Okay. See, what is the idea? The idea is एकदम फ्रेश चलते हैं। ये मेरे 150 एंट्रीज हैं, राइट? दीज आर माय 150 एंट्रीज। These are my 150 users. Okay, so these are my 150 users. Now, what we did in the very first query, what we did was we just fetched out the month and year, because actual data में क्या है, month and year नहीं है। Select star from users events, तो यहाँ पे मंथ ईयर एंड डे भी है, तो वी आर जस्ट फेचिंग आउट द मंथ एंड ईयर एंड द यूजर आईडी। अभी हम लोग इन दोनों कॉलम पे काम कर रहे हैं। So I have the month and year and user ID, and I have all this user ID and corresponding month and year. ठीक है, that was the first query, सबसे पहली query। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उठाया फर्स्ट टाइम तुम कब आए। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, इसकी इतनी सारी एंट्रीज है, बट पहली बार तो यहां पर आया था, राइट? फर्स्ट टाइम ही केम ऑन दिस डे। सेम वे ये वाले बंदे में ये कब आया था, ये पहली बार आया था फरवरी में। इसकी दो एंट्रीज, फरवरी में उसने दो बार काम किया, राइट? सेम वे सारे बंदों का हमने किया। तो हमने अगली क्वेरी जो बनाई उसमें क्या किया, हमने यूजर आईडी लिया
मंथ ईयर लिया और हमने सिर्फ फर्स्ट डे का एंट्री उठाया, राइट। तो हमने सिर्फ फर्स्ट डे की एंट्री उठाई। ठीक है, नाउ ये हमने कर लिया। अब जैसे ही हमने फर्स्ट डे की एंट्री उठाई, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा इस कॉलम और इस कॉलम पे मैं ज्वाइन करता हूं, इन दोनों कॉलम पे अगर मैं ज्वाइन करता हूं और यूजर आईडी मैच होंगे, बट जब यूजर आईडी मैच होंगे तो क्या होगा, ये इससे ज्वाइन करेगा, ये भी इससे ज्वाइन करेगा, ये भी इससे ज्वाइन करेगा, ये भी इससे ज्वाइन करेगा, और ये भी इससे ज्वाइन करेगा। बट तुम जब ज्वाइन होगे तब तुम ये चेक करो कि जो इसका मंथ एंड ईयर है और इसका मंथ एंड ईयर है वो सेम होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, सिर्फ इसको ही उठाएगा वो, राइट। तो जब तुम्हारा इसका मंथ एंड ईयर और इसका मंथ एंड ईयर सेम होगा तब उसको तुम न्यू बोल दो, और जब तुम्हारा अलग अलग होगा तब इसको तुम एग्जिस्टिंग बोल दो, राइट। उसको न्यू क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो उसकी पहली एंट्री थी, इट वॉज अ फर्स्ट ऑर्डर डेट, राइट। दैट्स व्हाई यू आर न्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे, but after that you are already a customer, right, you are no longer new. So that is what this query is doing. ये जो क्वेरी हमने बनाई यहाँ पर वो कर रही है काम। यहाँ हमने क्या बोला है कि तुम्हारा जो डेट है, जो तुम्हारा ये डेट है, ये तुम्हारा डेट फर्स्ट सीन मंथ, ये फर्स्ट सीन मंथ से मैच होता है। अगर ये तुम्हारा डेट मैच होता है तो उसको तुम न्यू बोलो, तो उसको तुम न्यू बोलो, वरना तुम उसको एग्जिस्टिंग बोलो। इज दैट क्लियर, वाज दैट तेजस्विनी? ओके, so now let's proceed further. I have sent you doubts on Gmail book. I'll check on that because I was full day had the class. Once I'll get time, I'll get back to you. So my third part is done. Let's go to the fourth part. अभी हमने सबको नाम दे दिया है, न्यू और एग्जिस्टिंग करके नाम दे दिया हमने। अब हम लोग थोड़ा और एडवांस करते हैं। मुझे डिस्टिंक्ट पे काम करना है, डिस्टिंक्ट, क्योंकि तुमने देखा होगा यहाँ पे दो दो एंट्री आ रही थी, राइट। यहाँ पे हमको दो दो एंट्री आ रही थी, किसी किसी यूजर में दो दो एंट्री आ रही थी, यहाँ पे देखो दो दो तीन तीन, इनफैक्ट तीन तीन एंट्री भी आ रही है। तो हम लोग डिस्टिंक्ट उठाएंगे। इतनी सारी एंट्री का फायदा नहीं ना, एक बार पता चल जाएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो लेट्स गो एंड टेक दिस क्वेरी ओनली। ये पूरा कॉपी कर लीजिए। स्टेप 4 को हम नाम देंगे, गिव मी द डिस्टिंक्ट, गेट द डिस्टिंक्ट यूजर पर मंथ पर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो एक तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लग जाएगा, डिस्टिंक्ट डेट फॉर्मेट, दिस इज फाइन, यूसेज मंथ, दैट इज फाइन, यूजर आईडी फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ज्वाइन फाइन, दिस इज फाइन, मिनिमम इज फाइन, सब कुछ सही लग रहा है, ये पूरी क्वेरी सही है। तो अब अगर उसको मैं चलाता हूँ तो मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट एंट्री मिलेगी। अब तुम किसी भी यूजर को उठा लो, या तो उसका न्यू होगा या उसका एग्जिस्टिंग होगा, राइट। न्यू होगा, एग्जिस्टिंग होगा, न्यू होगा, ये दोबारा नहीं आया है, न्यू होगा, एग्जिस्टिंग होगा। और यहाँ पे दो बार आया है पिछले, बिकॉज इट्स डिस्टिंक्ट, राइट, डिस्टिंक्ट ऑन दिस। सो यहाँ पे तुम्हारी तीन एंट्री आ रही है, विच इज ओके, बिकॉज हमने डिस्टिंक्ट कहाँ पे लगाया, हमने यूजर आईडी और डेट पे डिस्टिंक्ट मारा है, तो ये दोनों तो अलग है ना, तो ऑब्वियसली ये फिर दोनों एंट्री आएंगी। So that is fine. Now, once that is done, I will expand this query further. Step 5, count users by type per month. Right? अब मुझे काउंट निकालना है।
तो जो मेरी ये क्वेरी है, इस क्वेरी को उठाएंगे, इसी को हम लोग एडवांस कर रहे हैं। तो आई टेक दिस क्वेरी एंड इसके बाहर हम लोग एक और सिलेक्ट मारेंगे, सिलेक्ट यूसेज मंथ, यूसेज मंथ कॉमा यूजर टाइप कॉमा काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूजर आईडी एज यूजर count from this entire story group by user usage month and user type। तो अब क्या होगा हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। एरर क्यों आ रहा है? alias error, let's say classified users। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। अब मुझे हर महीने का न्यू और एग्जिस्टिंग अकाउंट मिल रहा है। तो फेब में मेरा सिर्फ 13 न्यू थे, बिकॉज दैट कैन बी माई फर्स्ट बिजनेस मंथ होगा, राइट। इसलिए मेरा फेब में कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, बिकॉज वो शायद से पहला मंथ होगा। तो दैट इज फाइन। अब तुम 3 में देखो, मार्च में देखो, मार्च में 5 नए आए हैं, नए आए और 12 एग्जिस्टिंग थे। और अप्रैल में देखोगे तो तुम्हारे 2 नए आए और 12 एग्जिस्टिंग थे, राइट। तो मुझे ये मिल गया। तो मुझे अब हर महीने का न्यू और एग्जिस्टिंग मिल गया। एग्जिस्टिंग वही होंगे जो सबसे पहली बार आए होंगे, फेब में आए होंगे, और मार्च में भी आ रहे हैं, अप्रैल में भी आ रहे हैं। तो मेरे फेब में 13 बंदे नए थे, बट मार्च में 12 बंदे ही रहे। मतलब कि फेब में एक बंदा आया होगा जो कि उसके बाद कभी नहीं आया। हमने देखा था एक ऐसा रिकॉर्ड था हमारे पास, राइट। हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कि एक ही एंट्री थी उसकी। ढूंढना पड़ेगा इसमें, बट मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। बट हमने बीच में चेक किया था, आया था एक, ठीक है। तो वही बंदा एस्केप है, बाकी तो कंटिन्यूअसली आ ही रहा है। तो 13 में से 12 है, एक बंदा चला गया छोड़ के। अप्रैल में भी 12 है, एक बंदा नहीं है, वही वाला। और वाइल दिस नेक्स्ट मंथ्स न्यू ऑल्सो एडेड। अभी जो 5 नए आए हैं, तो यहाँ पे 17 नहीं हुआ है, मतलब कि कुछ तो बीच में स्किप हो रहे हैं। हमारा वो टास्क नहीं है, हमारा टास्क है परसेंटेज निकालना। बट बेसिकली 12 इज कांस्टेंट, बट ऐसा हो सकता है कि ये 12 वही ये 12 ना हो, राइट। वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज ये 5 नए ऐड हुए हैं, तो 17 होना चाहिए था। 17 नहीं है, 12 ही है। तो हो सकता है कि कुछ पुराने छोड़ के चले गए हों और कुछ नए ऐड हुए। यू कैन एनालाइज दैट, हमको एनालाइज नहीं करना है। बट आई गॉट द काउंट हियर, राइट। सो आई गॉट द यूसेज month, user type and distinct count of customer group by that। so I am getting कितने न्यू और एग्जिस्ट, नॉर्मल ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट है। मंथ और यूजर टाइप के बेसिस पे काउंट कर लिया। Now once that is done, I will further go ahead and calculate the total per month, right। Basically I want to calculate the share using total per month। थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे क्वेरी को। सो स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट शेयर यूजिंग टोटल पर मंथ, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। ये क्वेरी का कुछ पार्ट तो होगा ही होगा, तो उसको तो उठा लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक पेज में आ जाए। तो अभी ये यूसेज, यूजर टाइप, एवरीथिंग इज देयर। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट दिस पर्टिकुलर टेबल एंड ज्वाइन दैट विथ टोटल यूनिक यूजर्स पर मंथ। तो मुझे एक और क्वेरी बनाना पड़ेगा जो कि टोटल यूनिक यूजर्स निकालेगा, राइट। सो हाउ विल आई गेट द टोटल यूनिक यूजर्स, पहले उसकी क्वेरी बनाते हैं, इसको अभी साइड में रखते हैं। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट where I want to find the total unique users per month।
So select date format, time ID, %y, %m as usage month, comma, count of distinct of user ID as total users from user events group by date. Right. तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं एंड दैट मेक सेंस। अगर तुम ऊपर वाली क्वेरी चलाओगे तो देखो, फेब में 13 यूजर्स थे, मार्च में 12 + 5 17 यूजर्स थे, और अप्रैल में 12 + 2 14 यूजर्स थे। तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? वही मिल रहा है, 13 17 14। राइट। तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स आ गए। अब ये टोटल नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन मारूंगा, मुझे परसेंटेज निकालना है बेसिकली। राइट। तो मुझे वो वाले काउंट को इस वाले काउंट से परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेरी को मैं ज्वाइन लगा दूंगा बीच में। आई विल अप्लाई द ज्वाइन ऑन दिस, बट बिफोर आई डू अ ज्वाइन ऊपर एक लॉजिक भी बना देते हैं। राइट। सो लेट्स अप्लाई द लॉजिक हियर। इसके ये दोनों क्वेरी मेरी अब कंबाइन हो रही है। दिस क्वेरी विच इज गिविंग मी पर मंथ का न्यू और एग्जिस्टिंग का सेग्रीगेशन विल नाउ कंबाइन विद द टोटल यूजर के क्वेरी के साथ। आई एम अप्लाइंग द कंबाइनिंग दिस टू क्वेरीज। तो इसके ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर, और यहां पे लिखते हैं सिलेक्ट just give me a second, I'm thinking the logic here. This part is okay. Group by usage this, एक पूरा को सब क्वेरी बना के ज्वाइन मारते हैं अगर हम यूजर टाइप। चलो ठीक है, चला के देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस होल स्टोरी, ये पूरी क्वेरी यू सी नाम दे देते हैं इसको। इनर ज्वाइन, नीचे वाली क्वेरी जो हमने बनाई अभी, ठीक है, ये वाली क्वेरी, इसको नाम दे देते हैं टी ऑन यूसी डॉट यूसेज मंथ इज इक्वल टू टी डॉट यूसेज मंथ। नो कॉलम यूएस, यूसी होगा, यूसी, यूसी। राइट। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखो अकाउंट आ रहे हैं 13 13 12 17 5 17 12 14, सही लग रहा है, एकदम एकदम सही बना है। राइट। अब ऊपर चल के थोड़ा उसमें मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज एट द एंड वी नीड टू फाइंड द परसेंटेजेस। हमने दोनों क्वेरी को ज्वाइन कर दिया है, अब मुझे प्रॉपर मिल रहा है न्यू एग्जिस्टिंग के साथ साथ ओवरऑल काउंट भी मिल रहा है मेरे को। राइट। तो अब चलते हैं हम लोग ऊपर और यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यूसी का मैं सिर्फ यूसेज मंथ लेता हूँ।
और मैं लगाता हूं यहाँ पे मैक्स ऑफ केस व्हेन यूसी डॉट यूजर टाइप is equal to new, then round of uc dot user count divided by t dot total users, comma to end as share new users, comma इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यूजर टाइप इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग, then round, rest all remains the same from this whole story, and group by UC month usage, because max लगाया तो group by लगाना पड़ेगा, so group by UC dot usage month, परफेक्ट। तो ये देखो आगे मेरा अच्छा क्वेरी बन गया, राइट। अब यहाँ इसको समझने का ट्राई करते हैं, एक बार इसको नंबर चेक भी कर लेते हैं कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। न्यू यूजर्स में 1%, 100% आ रहा है, एकदम सही है, बिकॉज 13 मेरे यूजर्स नए थे, तो न्यू अपॉन टोटल वॉज 13/13 ओनली, राइट। अगर मैं इनर वाली क्वेरी चलाऊं यहां से लेके इस पूरी क्वेरी को हटा दें, ये ग्रुप बाय हटाते हैं, ऊपर मैक्स मुक्स हटा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट। ये देखो फरवरी में मेरे 13 न्यू एग्जिस्टिंग यूजर न्यू यूजर थे और टोटल भी 13 ही थे, तो 13 डिवाइड बाई 13 इज 100%। तो मेरे फेब में न्यू यूजर्स में 100% था, बट एग्जिस्टिंग में 0% था, नल था बेसिकली। देख लो यहाँ पे न्यू यूजर्स में 100% है और शेयर में नल है। दूसरा देखते हैं, 5/17, 12/17, मार्च का महीना, 5 नए यूजर थे, तो 5/17 41%, एंड सॉरी 5/17, 5/17 29%, एंड 12/17 70%। वहां पे क्या आ रहा है 29 एंड 71, परफेक्ट। तीसरा देख लेते हैं, 2/14, 12/14, सो 2/14 14%, एंड 12/14 86% रफली, सो क्या आ रहा है वहां पे 14 and 86, perfect। So the output is looking fine, which we are looking for percentage share of new and existing users। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग होगा, तो ऊपर वाली क्वेरी में यहाँ पे इसको चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग, राइट। अब इसकी क्वेरी एक बार समझ लेते हैं क्विकली, इसको क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ तक तो पता था, यहाँ तक तो तुमने सारा देख लिया, ये हमने एग्जिस्टिंग यूजर्स का निकाल लिया था क्वेरी, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया था टोटल यूजर्स के साथ, यहाँ तक का हमें ये वाली अंदर की क्वेरी पूरी पता थी हमको, यहाँ तक की ये क्वेरी हमको पता थी, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग और न्यू को सेग्रीगेट कर रहा है और ये हमारा टोटल यूजर्स निकाल रहा है, ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग यहाँ ये मेन लॉजिक हमने लिखा है बाद में, केस व्हेन यूजर टाइप इज न्यू देन गेट द काउंट ऑफ यूजर बाय टोटल यूजर। तुमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया कि मुझे न्यू यूजर काउंट ही काउंट करना है, तो जब तुम्हारा यूजर टाइप न्यू होगा तो जो यूजर काउंट आएगा वो न्यू वाले का ही काउंट आएगा, अपॉन टोटल यूजर्स आएगा, तो उसको हमने बोलते हैं न्यू यूजर्स का परसेंटेज। सेम वे मैक्स, और उसके बाद हम लोग उसमें मैक्स निकाल रहे हैं। मैक्स क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, हमको मैक्स निकालना है, राइट।
Basically, I need one aggregation to get the value. So that's why we put the max. You can put min also. That is fine. Right? इससे फर्क नहीं पड़ता है. सेकेंड इज यहाँ पे एग्जिस्टिंग आ जाएगा. एग्जिस्टिंग वाला बंदा अगर है तो उसको मुझे काउंट निकाल के वैल्यू निकालनी है. अगर तुम मैक्स का मिन भी करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ आई चेंज दिस मैक्स टू मिन, यू कैन सी दैट द आउटपुट इज कमिंग एग्जैक्टली द सेम. कोई फर्क नहीं पड़ता. एक एग्रीगेशन चाहिए था मेरे को. मैक्स करो मिन करो, सम भी करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. अगर एवरेज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली. राइट, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज द आइडिया. आई जस्ट नीड वन एग्रीगेशन. इसके अंदर से जो मुझे वैल्यू निकल के आ रही है उसको मुझे बुलाना है. एक ही वैल्यू निकल के आ रही है. न्यू का टोटल काउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूजर्स फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. एक ही वैल्यू आएगी. राइट, जनवरी में फरवरी में एक ही था 13 नंबर. तो ये टोटल काउंट कितना है? 13 है. और टोटल कितना है? ये भी 13 है. तो 13/13 इज 1. तो 1 का मैक्स क्या होगा? 1 ही होगा. 1 का मिन क्या होगा? 1 ही होगा. 1 का एवरेज क्या होगा? 1 ही होगा. तो यहाँ तुम कुछ भी एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हो. तो हर मंथ के लिए वो जो भी न्यू यूजर का काउंट है उसको टोटल यूजर के काउंट के साथ डिवाइड करके परसेंटेज बता रहे हैं. सेम वे जो भी एग्जिस्टिंग यूजर का काउंट है उसके काउंट को टोटल के साथ डिवाइड करके उसका परसेंटेज बता रहे हैं. तो न्यू का परसेंटेज प्लस एग्जिस्टिंग का परसेंटेज 100% होना चाहिए. इन दोनों का सम 100% है. इन दोनों का सम 100% है. इन दोनों का सम भी 100% है. राइट, सो वी आर गेटिंग दिस आउटपुट. ओके, is that making sense all of you, what this query is doing and how it is doing? I'll share these queries with you. You can go and explore that again from your side. Okay, so we'll connect again this week only, coming week, and we'll try to solve 2 more questions. All right, have a nice day. We'll see you in the next session. I'm sharing this with the support team. They will forward it to you.